Hello guys, कैसे हो सब? How are you all? Great. So let's start with today's session. It's going to be very amazing and very informative. Let's start. First of all, we will quickly revise what we did in last session, then we'll proceed further accordingly, right? So in last session, what we have discussed. So I told you that the legislative intent of CRPC is to make exhaustive. Okay, I told you that the legislative intent of CRPC is to make exhaustive. But we all know that the situations are very dynamic in nature. Situations कैसी होती हैं? Dynamic nature की होती हैं. So how can you say that CRPC is exhaustive in nature? So we bring the concept of inherent powers. We bring the concepts of inherent power, and we give inherent power to High Court so that they can pass orders whenever there is a situation of non-liquid, or whether when the express provision of CRPC becomes ineffective, right? So I told you the three grounds in which High Court can exercise its inherent powers and can pass orders. The three grounds were when the when the express provisions become ineffective or redundant, when there is a misuse of, second one is when there is a misuse of the express provision, and third one, situation of non-liquid. So I told you these three things. Okay, in these three conditions, High Court has the power, has can use its inherent power and pass order to make the provision effective, right? To make the provision effective. Then I told you about these are the three cases in which High Court can exercise its inherent power. And why inherent power is there? To make the CRPC exhaustive, because situations are dynamic. The legislative has deemed CRPC to be exhaustive, but it cannot be exhaustive. Circumstances are dynamic. There may be situation in which when the law was effective at that time, but now the law was not that much effective. So what to do? So High Court can use its inherent power. Then I told you the purpose of section 482. That purpose is simple of 482. Then I told you the use of word nothing. What is the interpretation behind the word nothing? Why can't we just use notwithstanding? Why we just use nothing? So I told you that nothing is basically a saving clause. The express provision of CRPC is not affecting the inherent power of High Court, and vice versa. Inherent powers are not affecting the express provision of CRPC. The purpose of inherent power is to complement the express provision of CRPC, is to support the express provision of CRPC. So whenever express provision of CRPC become redundant, become ineffective, then High Court can use its power to make those provision more effective. So they are complementing in nature, complementary in nature. They are not overriding each other, right? So they are complementary in nature. The job of inherent power is to complement the express provision of CRPC, is to support CRPC, is to make it more effective, right? Not to override the express provision of CRPC, not to nullify the CRPC. Then I told you, if there is a conflict between express provision and inherent power, obviously express provision will prevail, because no one is above it. Express provision, only three cases I told you in which High Court can use its inherent power and pass such orders: when express provision become ineffective. Otherwise, if express provision is good, then High Court can't just pass different orders and nullify the express provisions, right? Burden, जब भी conflict आएगा तो express provision will prevail. Then we proceed little bit further, and I told you about these all are the things that I told you about inherent powers, right? Now, today we are going to start with a new concept called implied powers. It's very important. So already know the background of inherent powers, कि हमने भाई inherent powers को क्यों यूज किया, क्यों जरूरत है inherent powers की, कि जब जब कोई सीआरपीसी में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होता है उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर. सवाल उठता है, क्या मैजिस्ट्रेट और इन पे इनहेरेंट पावर्स हैं? तो उसका आंसर क्या था? नो, मैजिस्ट्रेट्स डू नॉट हैव इनहेरेंट पावर. पर कोई और पावर है.
है ना, क्योंकि ये आई टोल्ड यू दैट मैजिस्ट्रेट हैज टू स्टिक, magistrates are bound by CRPC, magistrates are bound by the express provision of CRPC, they can't do anything out of CRPC. High court can do in 3 cases that I told you, but magistrates are strictly bound by CRPC. Magistrate can't do anything out of the CRPC. जो CRPC में लिखा है उसी से स्टिक रहना है, उससे बाहर नहीं जा सकता, है ना। बट मैजिस्ट्रेट डू हैव इम्प्लाइड पावर्स, मैजिस्ट्रेट के पास क्या है, इम्प्लाइड पावर्स और इंसिडेंटल पावर्स और एंसिलरी पावर्स है। अब ये कौन क्या पावर्स हैं? कंसिडर एन एग्जाम्पल, कंसिडर एन एग्जाम्पल कि FIR एक कॉग्निजेबल केस था, देयर वाज अ कॉग्निजेबल केस, और उस पे FIR फाइल नहीं कर रही थी पुलिस। सपोज कंसिडर एन एग्जाम्पल, देयर वाज अ कॉग्निजेबल केस एंड पुलिस इज नॉट फाइलिंग एन FIR। सो देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन 156(3), एक ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन है जिसमें आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जब जब पुलिस कॉग्निजेबल केस में FIR फाइल नहीं करती है, तब तक आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। और 156 क्लॉज 3 में मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और टू डायरेक्ट द पुलिस टू डू इन्वेस्टिगेशन, टू फाइल एन FIR एंड डू इन्वेस्टिगेशन। कंसिडर आपने मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भैया पुलिस FIR फाइल करो एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन नाउ। सपोज पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही है प्रॉपरली, एकदम घटिया तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देयर इज नो सच प्रॉपर थिंग्स दैट आर फॉलोड, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बेकार तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप? तो इस केस में क्या हुआ था, साकरी बासु में जो कंप्लेनेंट था उसने फिर से एक एप्लीकेशन फाइल की थी, ठीक है, फिर से एक एप्लीकेशन फाइल करी थी मैजिस्ट्रेट को फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। एप्लीकेशन वाज फाइल्ड फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट प्लीज ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर मैजिस्ट्रेट जो होता है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर देता है। पहले क्या करता है वो, पहले क्या होता है कि एप्लीकेशन होती है 156(3) की फाइल, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, पर पुलिस बहुत बेकार तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो कंप्लेनेंट फिर से मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और एप्लीकेशन फाइल करता है कि सर काइंडली पास द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और इस केस में मैजिस्ट्रेट पास कर देता है साकरी बासु में, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर देता है। ये ऑर्डर चैलेंज हो जाता है, ठीक है, दिस ऑर्डर वाज चैलेंज, ठीक है, ये ऑर्डर चैलेंज हो जाता है कि भैया मैजिस्ट्रेट के पास कोई, देयर इज नो सच एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का CRPC में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है? नहीं है। तो हाउ कैन मैजिस्ट्रेट पास सच ऑर्डर्स? ठीक है, तो ये चैलेंज हो जाता है कि मैजिस्ट्रेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर ही नहीं सकता है, वो 156(3) में जो ऑर्डर उसने डायरेक्ट किए वही कर सकता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का देयर इज नो सच एक्सप्रेस प्रोविजन इन CRPC, सो हाउ कैन ही पास? और आप काइंडली इसको, इस ऑर्डर को क्वाश करो, ठीक है, तो ये चैलेंज करता है कंप्लेनेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि दीज आर इम्प्लाइड पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, these are the implied powers, these are not something that is, this order or this power is not something that magistrate can't use, ठीक है, implied powers हैं ये। implied powers होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जस्ट टू मेक योर फर्स्ट ऑर्डर इफेक्टिव मैजिस्ट्रेट कैन पास इंसिडेंटल ऑर्डर्स, मैजिस्ट्रेट कैन पास एंसिलरी ऑर्डर्स। तो टू मेक हिज फर्स्ट ऑर्डर क्या था 156(3) में, वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो टू मेक हिज फर्स्ट ऑर्डर इफेक्टिव मैजिस्ट्रेट कैन पास इंसिडेंटल ऑर्डर्स, एंसिलरी ऑर्डर्स और इम्प्लाइड ऑर्डर्स, ठीक है, ये पास कर सकता है, देयर इज नो नीड टू बी एक्सप्रेसली मेंशन्ड, ठीक है, ये जो पावर है ना ये इम्प्लिसिट ही है अंडर 156(3) में, ठीक है। ये जो है ये टोटली डिफरेंट ऑर्डर नहीं है, इट इज नॉट अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर, रेदर इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब वन जो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर पास है, इसके लिए कोई नीड नहीं है कि इसको अलग से कोई एक्सप्रेसली मेंशन करे CRPC में कि देयर हैज टू बी सम प्रोविजन ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन।
ये 156(3) का ही एक्सटेंशन है, 156(3) में ही ये इम्प्लाइड है, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, इट इज नॉट अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर। तो इम्प्लाइड पावर्स मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं, मैजिस्ट्रेट के पास वो पावर्स होती हैं कि जस्ट टू मेक हिज फर्स्ट ऑर्डर मोर इफेक्टिव, जस्ट टू मेक हिज प्रीवियस ऑर्डर मोर इफेक्टिव, मैजिस्ट्रेट कैन पास एंसिलरी ऑर्डर्स। और ये एंसिलरी ऑर्डर ही तो है कि भैया अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, राइट? वैसे ऑर्डर तो पास कर सकता है, अब इसके लिए आप ये नहीं कहोगे कि सर इस पे तो कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ही नहीं है, तो हाउ कैन ही पास? दिस इज implicit in 156(3) itself. There is no need कि आप फर्दर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से एक्सप्रेस प्रोविजन डालो कि दिस सेक्शन टोल्ड्स यू। इट इज implied, इट इज फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ 156(3). ठीक है, तो 156(3) की पावर बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि से एक बार डायरेक्ट कर दिया, अगर वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो उसने डायरेक्ट किया 156(3) में वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट हैज डू हैव सम एंसिलरी पावर्स टू मेक हिज प्रीवियस ऑर्डर मोर इफेक्टिव। ठीक है, वो अपने प्रीवियस ऑर्डर को मोर इफेक्टिव करने के लिए पास कर सकता है। दीज आर कॉल्ड इम्प्लाइड पावर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर छोटी चीज के लिए आप हाई कोर्ट नहीं आ जाओगे, हर की 482 में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था 482 में कि जब जब सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्विड होता है, जब सीआरपीसी पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होता है, तो हाई कोर्ट आता है इसमें। ठीक है, तो हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन हर चीज के लिए आप थोड़ी ना पहुंच जाओगे कि यार अब सर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करिए हाई कोर्ट। वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है, वो इम्प्लाइड पावर्स है मैजिस्ट्रेट की। तो टू मेक हिज फर्स्ट प्रीवियस ऑर्डर मोर इफेक्टिव, हाई कोर्ट द मैजिस्ट्रेट कैन पास इंसिडेंटल ऑर्डर्स और एंजिलरी ऑर्डर्स, बिकॉज ये इसी के एक्सटेंशंस हैं। इसी, भाई दोनों का नेचर क्या है, दोनों का पर्पस क्या है? 156(3) में भी आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में भी आप क्या डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट ही तो कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन। ऐसा तो नहीं कि ये बहुत अलग ऑर्डर है या अलग नेचर का ऑर्डर है, उसी का ही तो पार्ट है, उसी का ही तो नेचर है, उसी का ही तो एम्बिट है। ठीक है, तो 156(3) में ही ये फॉल करेगा। तो जल्दी से वो पढ़ लेते हैं कि द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव इनहेरेंट पावर, ये मैंने आपको बता दिया। सो एन एप्लीकेशन ऑफ इनहेरेंट पावर कैन बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट, बट मैजिस्ट्रेट डू हैव इम्प्लाइड और इंसिडेंटल पावर। So magistrate can always pass an order incidental to its earlier order to make the earlier order more effective. अपने अर्लियर ऑर्डर को मोर इफेक्टिव करने के लिए वो इंसिडेंटल ऑर्डर्स पास कर सकती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो, नहीं कर रहे हो तो। इट इज इम्प्लिसिट अंडर सेक्शन 156(3) that once an investigation order has been made, the magistrate can pass further order of proper investigation under 156(3) itself. So there is no need to expressly mention in other sections. 156(3) में ही आ रहा है ये, तो अब ये इस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि सर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का तो सर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ही नहीं दिया है। कहाँ लिखा है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है? लिखा नहीं है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। ये 156(3) का ही नेचर है, 156(3) से ही निकला हुआ है, 156(3) के ही एम्बिट में फॉल करता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर, इट इज एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ही है ये 156(3) का। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज इम्प्लिसिट इन सेक्शन 156(3) and such order can be passed. The court in this case also held that the magistrate has power of monitoring investigation. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझो कि जब जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास होता है, तब तक मैजिस्ट्रेट के पास एक और पावर आ जाती है, वो है मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मॉनिटरिंग, सर आपको नहीं लगता कि अगर मैजिस्ट्रेट मॉनिटर करने लग गया इन्वेस्टिगेशन, तो कहीं ना कहीं ये जो डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं कि डोमेन ऑफ जुडिशरी, डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव, डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें एक ट्रांसग्रेशन है एक तरीके का कि वो उसके डोमेन में इंटरफेरेंस कर रहा है एग्जीक्यूटिव के डोमेन में। तो इसमें साकरी बासु में सिंपल बोला गया कि मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन डजंट मीन कि यू हैव टू चेक डे टू डे इन्वेस्टिगेशन कि भाई डेली क्या कर रहा है पुलिस, आप हर बार इंटरफेयर कर रहे हो कि आज तुमने क्या इन्वेस्टिगेट किया, अच्छा बताओ, कल तुमने क्या इन्वेस्टिगेट किया था, अच्छा ये बताओ। डेली मॉनिटरिंग नहीं, जनरल जनरल मॉनिटरिंग, मतलब महीने में एक बार आपने पूछ लिया, अच्छा हमें रिपोर्ट दे दो, महीने की एक रिपोर्ट दे दो क्या करा है प्रॉपर। यू आर नॉट इंस्ट्रक्टिंग कि यहाँ इन्वेस्टिगेट कर, वहां इन्वेस्टिगेट कर, सो यू आर नॉट
मतलब आप एकदम ही इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, आप एक जनरल सुपरविजन रखे हो इन्वेस्टिगेशन पे कि प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। यू आर जस्ट चेकिंग इट जनरली कि हाँ भाई 1 महीने में अच्छा रिपोर्ट बता दो क्या है। लेकिन यू आर नॉट सुपरवाइजिंग डे टू डे इन्वेस्टिगेशन कि आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया। अच्छा ये क्यों नहीं कर रहे हो तुम, वो क्यों नहीं कर रहे हो, वहां जाना चाहिए था, वहां जाके पहले उसको अरेस्ट करो। यू आर नॉट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस उतना ही जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन इम्प्रॉपर हो रही है तो वो चेक कर सकता है कि भाई इम्प्रॉपर तो नहीं हो रही, मतलब फिर पास मतलब क्या हुआ फिर इंसिडेंटल ऑर्डर पास करने का, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इम्प्रॉपर हो रही है। तो मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ताकि आप एक सुपरविजन रखे रहो कि भाई सही से अब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि पहले ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उठपटांग, या कर ही नहीं रहे इन्वेस्टिगेशन सही से, ठीक है। तो ये इसमें सब कुछ हेल्ड था। तो मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें बोला था कि मॉनिटर कैन नॉट मीन टू सुपरवाइज डे टू डे इन्वेस्टिगेशन, डे टू डे प्रोसीडिंग्स, rather it would mean that magistrate can keep an eye on the investigation, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। एक मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि क्या, जैसे मान लीजिए 156(3) में मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट करी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो। कंसिडर मैजिस्ट्रेट को लगता है यार इन्वेस्टिगेशन इज नॉट नेसेसरी, या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यार इन्वेस्टिगेशन रुक जानी चाहिए क्योंकि पॉइंट बनता ही नहीं है, जो ये केस है फॉल्स है, या फिर मतलब नहीं बैठता। कैन मैजिस्ट्रेट, सुनना ध्यान से अब, ठीक है, कैन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू रिकॉल द इन्वेस्टिगेशन। क्या मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो स्टॉप कर दे इन्वेस्टिगेशन, कि रोक दो भाई, रिकॉल, या फिर वापस ले ले अपना ऑर्डर 156(3) का ऑर्डर वापस ले ले, और मैं कहते कि छोड़ो नहीं करो इन्वेस्टिगेशन। कैन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर to whether the recalling orders is incidental to the order of investigation, और इट इज अ कंप्लीटली न्यू ऑर्डर। मैंने आपको आखिरी बासु में क्या बताया था कि वो जो ऑर्डर पास था ना, वो इट इज नॉट अ कंप्लीटली न्यू ऑर्डर, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ 156(3). 156(3) में ही वो फॉल कर रहा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ हटके नहीं है ऑर्डर, ठीक है। तो दो एक्सप्रेस प्रोविजन मेंशन नहीं है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग दैट फॉल्स अंडर 156(3), तो कोई जरूरत भी नहीं है इसकी, उसके लिए कि आपको एक एक्सप्रेस प्रोविजन दिया जाए, या उसको स्पेसिफिकली लिखा जाए कि 156(3) में कहाँ लिखा है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आप समझ सकते हो यार कि वो एक इंसिडेंटल है, वो उसी का ही एक एक्सटेंशन है, उसी में ही है, भले वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है पर वो उसी का एक पार्ट है। बट क्या कहीं पे भी रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक्सप्रेस प्रोविजन है सीआरपीसी में? क्या रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ 156(3)? इज इट समथिंग दैट इज एक्सटेंशन टू 156(3)? क्या आपको लगता है कि रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन 156(3) का ही एक नेचर का है, उसी के कैरेक्टर जैसा है, उसी के एक नेचर जैसा है? 156(3) का पर्पस क्या था? टू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, वापस ले रहे हो इन्वेस्टिगेशन। तो इट इज अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। इट इज नॉट incidental to the order of investigation, it is not incidental to your previous order, to the first order, it is totally new order, it is a completely new order। तो जब जब कोई चीज कंप्लीटली न्यू होगी और उस पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तब तक आपको किसके पास जाना पड़ेगा? मैजिस्ट्रेट तो कुछ भी नहीं कर सकता ना यार, ना रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना ही 156(3) में फॉल कर रही है। क्यों नहीं कर रही है मास्टर? क्योंकि 156(3) में आप क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तो आप रिकॉल कर रहे हो, तो नेचर तो बहुत ही डिफरेंट है, इट इज अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर। और ना ही रिकॉलिंग ऑर्डर्स का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है सीआरपीसी में, तो मैजिस्ट्रेट अब क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, अंडर सेक्शन 482, ठीक है। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ रिकॉलिंग इन्वेस्टिगेशन is not an order incidental to the original order of investigation। ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पास हुआ था 156(3) में, उसका ये इंसिडेंटल नहीं है, मतलब उसी का
एक कैरेक्टर नहीं है या उसी के एम्बिट में फॉल नहीं करता है ये, इट इज अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, सच ऑर्डर कैन बी पास बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482। क्योंकि क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिकॉलिंग पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है भी नहीं, और ना ही ये 156(3) का इंसिडेंटल है, ना ही ये उसके एम्बिट में फॉल करता है, क्योंकि इट इज अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर। तो ये जो डिस्कस हुआ था ना, ये धर्मेश भाई वासु भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2007 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला केस मैंने आपको क्या बताया, साकरी बासु। साकरी बासु में आई टोल्ड यू कि द सिचुएशन, कि जब जब सीआरपीसी में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होता था तो हम जाते थे सीधा हाई कोर्ट पे टू आंसर दैट सिचुएशन। बट मैजिस्ट्रेट, और ये मैजिस्ट्रेट्स का मैंने बताया था कि मैजिस्ट्रेट आर बाउंड, जो मैजिस्ट्रेट्स है ना वो बाउंड है सीआरपीसी के एक्सप्रेस प्रोविजन से। दे कांट डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दे कांट डू समथिंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सीआरपीसी, दे हैव टू स्टिक टू सीआरपीसी, दे हैव टू, है ना, वो बाउंडेड है सीआरपीसी से। लेकिन मैजिस्ट्रेट डू हैव इम्प्लाइड और इंसिडेंटल पावर्स। ठीक है, डू हैव इम्प्लाइड है, और इम्प्लाइड पावर का मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि टू मेक हिज प्रीवियस ऑर्डर मोर इफेक्टिव दे कैन पास इंसिडेंटल ऑर्डर्स। तो अगर 156(3) में उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, तो दे कैन पास द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एज वेल, क्योंकि वो अपने प्रीवियस ऑर्डर को मोर इफेक्टिव कर रहा है। द सेकेंड ऑर्डर इज मेकिंग प्रीवियस ऑर्डर मोर इफेक्टिव, दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड, और इट इज नॉट अ टोटली डिफरेंट ऑर्डर। भाई उसी का ही तो एक है, 156 से निकला है। ठीक है, तो ये आज का हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा यार, अब हम शुरू करेंगे कि हमने पूरा कवर कर लिया इनहेरेंट पावर्स, पूरा इनहेरेंट पावर्स आई हैव डिस्कस्ड यू इन डिटेल। पूरा मैंने डिटेल में इनहेरेंट पावर्स डिस्कस किया है। इम्प्लाइड पावर्स मैंने आपको बता दिए क्या होता है, उसके केसेस बता दिए इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हायरार्की होगा और कॉम्पिटेंसी टू पनिश। तो ये जो लेक्चर होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहना साथ में बस, है ना। आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, बिंदास। और आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।